بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو ویورز، میں ہوں محمد صدیق، لیکچرر ان کیمسٹری. آرڈان ورچوئل اکیڈمی کے ایک نئے ٹیوٹوریل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ٹوڈے دا ٹاپک آف ڈسکشن از اسٹیچومیٹری پارٹ 1 کلاس 11. کانٹینٹس آف دی لیکچر. آج کی اس لیکچر میں سب سے پہلے ہم میٹر کو ڈیفائن کریں گے، اس کے بعد اسٹیٹس آف میٹر ڈسکس کریں گے. اسٹیٹ آف میٹرز میں ہمارے پاس سالڈ، لیکوڈ اور گیس ہیں. اس کے بعد ٹائپس آف میٹر کو ہم ڈسکس کریں گے، جس میں ہمارے پاس دو مین ٹائپس ہیں، ایک سبسٹانس ہیں اور دوسرا مکسر ہیں. سبسٹانس میں پھر ہمارے ساتھ ایلیمنٹ اور کمپاؤنڈ ہیں، اور مکسر میں ہمارے ساتھ ہوموجینیس مکسر اور ہیٹروجینیس مکسر ہیں. 4 نمبر پر ہم ایٹم ڈسکس کریں گے. 5 نمبر پر ایٹامک نمبر، 6 نمبر پر ماس نمبر، 7 نمبر پر ایٹامک ماس، 8 نمبر پر ایٹامک ویٹ، 9 نمبر پر ریلیٹیو ایٹامک ماس اینڈ لاسٹ ایٹامک ماس یونٹ ڈسکس کریں گے. سو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں. میٹر. what is matter? میٹر کیا ہوتی ہے؟ we can define matter as anything which has mass and occupies space is called matter. ہر وہ چیز جو کمیت یعنی ماس رکھتی ہے اور جگہ گھیرتی ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم میٹر کہتے ہیں. فار ایگزامپل بک، واٹر، پین، ایئر ایٹسٹرا. ان ایگزامپلز کو اگر ہم دیکھیں تو ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ ماس رکھتا ہے اور جگہ بھی کیا کرتا ہے؟ گھیرتا ہے. سو یہ کیا ہے؟ یہ میٹر ہے. اسٹیٹ آف میٹر. میٹر کے کتنے اسٹیٹس ہیں اور what are the basic states of matter? So there are 3 states of matter. First one is solid. Now what is solid? The lowest energy state of matter which has definite shape and volume is called solid. میٹر کی لویسٹ انرجی اسٹیٹ جس کی ایک خاص شیپ اور خاص والیوم ہوتی ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم سالڈ کہتے ہیں. فار ایگزامپل نمبر 1 بک، 2 پین، 3 ٹیبل، 4 چیئر. یعنی بک، پین، ٹیبل اور چیئر جو ہیں یہ میٹر کی وہ ٹائپ ہیں جس کی ایک خاص شیپ اور خاص والیوم ہوتی ہے. Liquid. What is liquid? We can define liquid as the state of matter which has definite volume but no definite shape is called liquid. میٹر کی وہ اسٹیٹ جس کی ایک خاص والیوم تو ہوتی ہے لیکن اس کی کوئی خاص شیپ نہیں ہوتی ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم لیکوڈ کہتے ہیں. فار ایگزامپل واٹر، ملک، الکوہل، پیٹرول اینڈ ڈیزل. سو اگر ہم واٹر لے لیں تو اس کی والیوم جو ہے وہ تو فکس ہوتی ہے لیکن اس کی شیپ جو ہے وہ فکس نہیں ہوتی ہے. سپوز اگر واٹر کو ہم گلاس میں ڈالیں تو اس کی شیپ گلاس جیسی ہو جاتی ہے، یا اگر ہم اس کو کسی اور کپ میں ڈالیں تو اس کی شیپ کپ کی طرح کیا ہو جاتی ہے. سو مطلب یہ کہ لیکوڈ کی والیوم تو اسپیسیفک ہوتی ہے، مطلب خاص ہوتی ہے، چینج نہیں ہوتی، لیکن والیوم جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اسپیسیفک ہے، لیکن شیپ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ویریبل ہے، یعنی چینج ہوتی ہے، ڈیفینیٹ نہیں ہوتی ہے. گیس. We can define gas as the highest energy state which has a definite mass but no definite volume
and shape is called gas. यानी मैटर की वो स्टेट, यानी गैस जो है ये मैटर की हाईएस्ट एनर्जी स्टेट है और इसकी मास जो है ये डेफिनेट है, यानी एक खास मास होती है, लेकिन इसकी शेप और वॉल्यूम जो है वो क्या है, वो खास नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन. सो ये जितनी भी एग्जाम्पल हैं इनमें से हर एक की मास जो है वो क्या होती है, वो डेफिनेट होती है, लेकिन इसकी शेप और वॉल्यूम जो है वो डेफिनेट नहीं होती है. टाइप्स ऑफ मैटर. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैटर? मैटर कितने टाइप्स की होती हैं? There are two main types of matter. मैटर की दो मेन टाइप्स हैं. नंबर 1 substance, नंबर 2 mixture. Now what is substance? Substance क्या होती है? We can define substance as pure matter is called substance. प्योर मैटर खालिस मादा जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? सब्सटेंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, वाटर, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. यानी हाइड्रोजन, वाटर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है ये क्या है? ये प्योर मैटर है और इसको हम क्या कह सकते हैं? सब्सटेंस कह सकते हैं. टाइप्स ऑफ सब्सटेंस. देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सब्सटेंस. सब्सटेंस की हमारे पास दो टाइप्स हैं. एक को हम कहते हैं एलिमेंट और दूसरे को हम कहते हैं कंपाउंड. नाउ एलिमेंट. व्हाट इज एलिमेंट? वी कैन डिफाइन एलिमेंट एज a substance which is made up of the atoms having same atomic number is called element. वो सब्सटेंस जो ऐसे एटमों से बनी हुई हो जिनमें हर एक एटम की एटॉमिक नंबर क्या हो? सेम हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एलिमेंट कहते हैं. यानी एलिमेंट जो है ये इसमें जितने भी एटम्स होते हैं उनकी एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होती है? वो सेम होती है. रिप्रेजेंटेशन. एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल. एलिमेंट्स को हम सिंबल से क्या करते हैं? जाहिर करते हैं. द सिंबल इज एब्रिविएटेड फ्रॉम द केमिकल नेम ऑफ एलिमेंट. और ये सिंबल कहां से आता है? ये सिंबल जो है ये हम एलिमेंट के केमिकल नेम से क्या करते हैं? अखज़ करते हैं. The chemical name of element may be in English or Latin name. Chemical name of element जो है ये या तो इंग्लिश लैंग्वेज से हम क्या करते हैं? लेते हैं, या लातीनी जबान से हम क्या करते हैं? लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश नेम एंड वन लेटर सिंबल. यहां पर हमारे साथ कुछ इंग्लिश नेम है और इसके लिए वन लेटर सिंबल यानी एलिमेंट के लिए जो वन लेटर सिंबल यूज किया जाता है वो है. सो इंग्लिश नेम एंड सिंबल. हाइड्रोजन. हाइड्रोजन जो है ये क्या है? ये इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है और इसके लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं वो क्या है? वो हाइड्रोजन है. यानी हाइड्रोजन क्या है? एक एलिमेंट है, लेकिन ये इंग्लिश लैंग्वेज का क्या है? वर्ड है और इसका जो सिंबल है वो क्या है? वो H है. इसी तरह ऑक्सीजन के लिए जो सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं वो O है. नाइट्रोजन के लिए जो सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? वो N है. इंग्लिश नेम एंड टू लेटर सिंबल्स. यानी एलिमेंट्स जिनका नेम इंग्लिश लैंग्वेज में हो और इसके लिए यानी उनके सिंबल जो हैं वो दो लेटर से बनी हुई हो. फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम. सो कैल्शियम जो है एलिमेंट है,
लेकिन इसको ये इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश लैंग्वेज का क्या है वर्ड है, और इसके लिए हम 2 लेटर सिंबल इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से एक सी और दूसरा ए, यानी शॉर्टकट हम कहते हैं सी ए। यानी कैल्शियम के लिए जो सिंबल हम यूज करते हैं वो क्या है सी ए। इसी तरह मैग्नीशियम के लिए जो सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या है एम जी। बेरियम के लिए हम जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं वो है बी ए। बेरिलियम के लिए जो सिंबल हम यूज करते हैं वो है बी ई। लेटियन नेम्स एंड 2 लेटर सिंबल, यहां पर हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके लातीनी नाम्स भी हैं और इंग्लिश नेम भी हैं, लेकिन इसका जो सिंबल है वो हम उसके लातीनी नेम से क्या करते हैं अखज़ कहते हैं। फॉर एग्जांपल लेटरियम, यानी लातीनी जबान में हम नेट्रियम कहते हैं, लेकिन इंग्लिश जबान में या इंग्लिश लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं सोडियम कहते हैं, और इसके लिए हम जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं वो है Na। इसी तरह कैलियम जो है लातीनी जबान का लफ्ज है, इंग्लिश में इसको हम पोटाशियम कहते हैं, और इसके लिए जो हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं वो क्या है वो है K। इसी तरह एरम जो कि लातीनी जबान का एक वर्ड है, इसके लिए हम इंग्लिश में जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो है गोल्ड, और इसका जो सिंबल है वो है AU। नेम ऑफ द एलिमेंट्स बिहाइंड एटॉमिक नंबर 103, यानी 103, यानी जब 103 से यानी एटॉमिक नंबर बढ़ जाए तो उसको हम उन एलिमेंट्स को हम किस तरह नेम देते हैं। फॉलोइंग टर्म्स आर एडॉप्टेड व्हाइल नेमिंग द एलिमेंट्स बिहाइंड एटॉमिक नंबर 103, यानी 103 के बाद जो एलिमेंट है उसको हम जब नेम देते हैं तो ये फॉलोइंग टर्म्स क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं। किस तरह? फॉर एग्जाम्पल यानी 0 के लिए हम नील का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह 1 के लिए अन का टर्म यूज करते हैं और इसको n से रिप्रेजेंट u से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह 2 के लिए बाई और b से रिप्रेजेंट करते हैं। 3 के लिए ट्राई और t से रिप्रेजेंट करते हैं। 4 के लिए क्वाड और q से रिप्रेजेंट करते हैं। 5 के लिए पेंट और p से रिप्रेजेंट करते हैं। 6 के लिए हेड्स और h से रिप्रेजेंट करते हैं। 7 के लिए सेप्ट और s से रिप्रेजेंट करते हैं। 8 के लिए ऑक्ट और o से रिप्रेजेंट करते हैं। 9 के लिए इन और e से रिप्रेजेंट करते हैं। Names are given on the basis of about terms to represent atomic number and they end in IUM, यानी आखिर में एलिमेंट के आखिर में हम IUM क्या करते हैं लगाते हैं। आइए एग्जांपल स्टडी करते हैं। नेम फॉर एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 105, यानी 105 जब हमारे पास एक एलिमेंट हो और इसका एटॉमिक नंबर 105 हो तो ऐसे सिस्टम के जरिए हम उसको कैसे नेम दे सकते हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ लिया कि 1 के लिए हम अन लिखते हैं, 0 के लिए हम नील लिखते हैं और 5 के लिए हम क्या लिखते हैं पेंट लिखते हैं। सो इसको यानी अन को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अन को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? यू से रिप्रेजेंट करते हैं। नील को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और पेंट को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और आखिर में हम IUM क्या करते हैं लगाते हैं। सो सिंबल फॉर अनिल पेंटियम इज UNP, यानी ये तो इसका नेम हो गया अनिल पेंटियम।
अनिल पेंडियम, ये तो इसका क्या हो गया, नेम हो गया, लेकिन इसके लिए हम सिंबल जो है वो किस तरह यानी अखज करते हैं, यहां से यू लेते हैं, यहां से एन लेते हैं और यहां से सिर्फ पी लेते हैं. सो सिंबल फॉर अनिल पेंडियम इज UNP. इसी तरह और भी एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे कि एटॉमिक नंबर 106 के लिए यानी इसका नेम क्या है, अनिल हेक्सियम, और इसका सिंबल जो है UNH. इसी तरह जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 107 हो उसका नेम जो है वो क्या होगा, अनिल सेप्टियम, और इसके लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं वो क्या होगा, UNS. इसी तरह वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 108 हो उसका नेम क्या होगा, अनिल ऑक्टियम, और इसका सिंबल जो है वो होगा UNO. इसी तरह वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 109 हो उसका नेम क्या होगा, अनिल एनियम, और इसका सिंबल जो है वो क्या होगा, UNE. कंपाउंड. नाउ व्हाट इज कंपाउंड? कंपाउंड क्या होता है? वी कैन डिफाइन कंपाउंड एज the substance which is formed by chemical combination of two or more than two atoms of different elements is called compound. यानी वो सब्सटेंस जो दो या दो से ज्यादा एटमों की केमिकल कॉम्बिनेशन से बना हुआ हो, लेकिन ये एटम्स जो हैं ये डिफरेंट एलिमेंट्स के होंगे. यानी जब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स क्या हो जाए, केमिकली कंबाइन हो जाए, तो वो क्या बनाता है, वो कंपाउंड बनाता है. फॉर एग्जाम्पल वाटर, बेंजीन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन. यानी वाटर, बेंजीन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ये क्या है, ये कंपाउंड है, क्योंकि इनमें जितने भी एटम्स हैं, फॉर एग्जांपल वाटर को अगर हम देखें तो वाटर में 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम है. ये तीनों एटम्स जो हैं आपस में केमिकली क्या हो चुके हैं, कंबाइन हो चुके हैं, और एज ए रिजल्ट क्या बनाया है, कंपाउंड बनाया है. टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स. कंपाउंड्स के कितने टाइप्स होते हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स. कंपाउंड्स के 4 टाइप्स होते हैं. नंबर 1 आयोनिक कंपाउंड, सेकंड कोवैलेंट कंपाउंड, थर्ड इंटरमेटालिक कंपाउंड, एंड लास्ट वन इज complexes. Now what is ionic compound? Ionic compound क्या होता है? The compound which has ionic bond is called ionic compound. यानी वो कंपाउंड जिसमें आयोनिक बॉन्ड हो, यानी एटम्स एक दूसरे के साथ आयोनिक बॉन्ड के जरिए अटैच हो, उसको हम क्या कहते हैं, आयोनिक कंपाउंड. फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड. अगर हम सोडियम क्लोराइड में देखें तो सोडियम और क्लोरीन एटम्स जो हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ आयोनिक बॉन्ड के जरिए क्या है, अटैच हैं या कंबाइन हैं. सो ये कंपाउंड यानी NaCl जो है वो आयोनिक कंपाउंड है. इसी तरह अगर कैल्शियम ऑक्साइड को देखें तो इसमें भी एटम्स यानी कैल्शियम और ऑक्सीजन एटम्स जो हैं ये आपस में आयोनिक बॉन्ड के जरिए क्या है, अटैच हैं. सो ये भी क्या है, आयोनिक कंपाउंड है. सिमिलरली अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड में हम देखें तो सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन जो हैं ये एक दूसरे के साथ आयोनिक बॉन्ड के जरिए अटैच हैं, और ये भी क्या है, ये भी आयोनिक कंपाउंड है. कोवैलेंट कंपाउंड. व्हाट इज कोवैलेंट कंपाउंड? द कंपाउंड व्हिच हैज कोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड कोवैलेंट कंपाउंड. यानी वो कंपाउंड जिसमें
कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद हो, या वो कंपाउंड जिसमें एटम्स एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए अटैच हो, उसको हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड। फॉर एग्जांपल वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड बेंजीन। अगर हम वाटर में देखें तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स जो हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए क्या है? अटैच हैं। सो ये क्या है? ये कोवेलेंट कंपाउंड है। इसी तरह अगर कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के एटम्स एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए अटैच हैं। सो ये भी क्या है? ये भी कोवेलेंट कंपाउंड है। इसी तरह अगर हम बेंजीन को देखें तो बेंजीन में भी कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए अटैच हैं। सो बेंजीन भी क्या है? कोवेलेंट कंपाउंड है। इंटरमेटालिक कंपाउंड, व्हाट इज इंटरमेटालिक कंपाउंड? इंटरमेटालिक कंपाउंड क्या होते हैं? The compound having metallic bond is called intermetallic compound. वो कंपाउंड जिसमें मेटालिक बॉन्ड पाया जाता हो उसको हम क्या कहते हैं? इंटरमेटालिक कंपाउंड। यानी वो कंपाउंड जिसमें मेटल्स के दरमियान या आयंस के दरमियान या एटम्स के दरमियान मेटालिक बॉन्ड मौजूद हो उसको हम क्या कहते हैं? इंटरमेटालिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम टू सिलिकॉन, यानी मैग्नीशियम और सिलिकॉन के दरमियान जो बॉन्ड है ये क्या है? या कंपाउंड है, ये क्या है? ये इंटरमेटालिक कंपाउंड है। इसी तरह मैग्नीशियम और गैलियम के दरमियान जो कंपाउंड है या ये जो कंपाउंड बनाते हैं ये क्या है? इंटरमेटालिक कंपाउंड है। इसी तरह मैग्नीशियम और स्टेनम ने जो कंपाउंड बनाया है ये क्या है? ये मेटालिक कंपाउंड है। बिल्कुल इसी तरह मैग्नीशियम और लेड ने जो कंपाउंड बनाया है ये क्या है? ये भी इंटरमेटालिक कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्सिस, the compound having coordinate covalent bond is called complexes। यानी वो कंपाउंड जिसमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता हो उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्सिस कहते हैं। या दूसरे अल्फाज में हम इस तरह भी कह सकते हैं कि वो कंपाउंड जिसमें एटम्स के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्सिस कहते हैं। फॉर एग्जांपल हेक्सा अमीनो कोबाल्ट क्लोराइड। सो हेक्सा अमीन कोबाल्ट क्लोराइड जो है ये क्या है? ये कॉम्प्लेक्स हैं और इसके अंदर कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। नाउ मिक्सचर, व्हाट इज मिक्सचर? मिक्सचर क्या होती है? वी कैन डिफाइन मिक्सचर एज the matter which is formed by a physical combination of two or more than two substances is called a mixture। यानी मिक्सर जो है ये वो मैटर है जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में फिजिकली कंबाइन हो जाए, यानी केमिकली कॉम्बिनेशन ना हो बल्कि क्या हो? फिजिकल कॉम्बिनेशन हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मिक्सचर कहते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl प्लस वाटर, यानी जब हम वाटर में NaCl डाले तो ये क्या बन जाता है? ये मिक्सचर बन जाता है। इसी तरह हम अगर वाटर में शुगर डाले तो ये क्या बन जाता है? ये मिक्सचर बन जाता है। टाइप्स ऑफ मिक्सचर, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ मिक्सचर। हमारे पास मिक्सचर के दो मेन टाइप्स हैं, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एक को हम होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं और दूसरे को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। Now homogeneous mixture, what is homogeneous mixture? We can define homogeneous mixture as a mixture having uniform composition is called homogeneous mixture। यानी वो मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन क्या होती है? यूनिफॉर्म होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड सॉल्यूशन। होमोजेनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन भी कह सकते हैं और इसकी एग्जांपल नंबर 1 एयर, सेकंड 4
थर्ड स्मोक। यानी होमोजेनियस मिक्सचर क्या है, ये इसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है। हेटेरोजेनियस मिक्सचर, वी कैन डिफाइन heterogeneous mixture as a mixture having no uniform composition is called heterogeneous mixture। वो मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती है उसको हम क्या कहते हैं, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। इट इज आल्सो कॉल्ड सस्पेंशन। हेटेरोजेनियस मिक्सचर को हम सस्पेंशन भी कहते हैं। एग्जाम्पल, सैंड प्लस वाटर, यानी जब हम वाटर और सैंड आपस में मिलाए तो ये जो मिक्सचर बनाता है, इस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। इसी तरह आइसक्रीम, आइसक्रीम क्या है, आइसक्रीम हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। थर्ड, पेट्रोल प्लस वाटर, पेट्रोल और वाटर जब हम आपस में मिलाए तो ये जो मिक्सचर बनाता है, इसी मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। Atom, what is atom? We can define atom as the smallest particle of an element which may or may not exist independently and can take part in a chemical reaction is called an atom। एटम जो है वो एलिमेंट का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो आजाद हालात में या तो रह सकता है और या नहीं रह सकता, और केमिकल रिएक्शन में भी हिस्सा क्या कर सकता है, ले सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। यानी एटम जो है ये एलिमेंट का स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा पार्टिकल है, और ये यानी कुछ एटम ऐसे हैं जो आजाद हालात में रह सकते हैं और कुछ ऐसे हैं जो आजाद हालात में नहीं रह सकते, और ये एटम जो है ये केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, हिस्सा लेता है। एटम ऑफ द नोबल गैसेस एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ड्यू टू कंप्लीट आउटरमोस्ट शेल। नोबल गैसेस जो हैं, यानी एटम ऑफ द नोबल गैसेस जो हैं वो आजादाना हालात में रह सकते हैं क्योंकि उनकी आउटरमोस्ट शेल जो है वो क्या है, वो कंप्लीट है। द नोबल गैसेस और हेलियम, नियॉन, आर्गन एटसेट्रा। नोबल गैसेस जो है वो हेलियम, नियॉन और आर्गन वगैरह हैं। एटम्स ऑफ द एलिमेंट अदर देन नोबल गैसेस cannot exist independently due to the incomplete outermost shell। नोबल गैसेस के अलावा जितने भी एटम्स हैं वो इंडिपेंडेंटली क्या एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इनके आउटरमोस्ट शेल जो है वो क्या है, वो इनकम्प्लीट है। फॉर एग्जांपल, एटम ऑफ हाइड्रोजन, एटम ऑफ नाइट्रोजन, एटम ऑफ ऑक्सीजन एटसेट्रा, ये एटम्स जो हैं ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। एन एटम हैज टू मेन पार्ट्स। एटम की दो मेन पार्ट्स होती हैं, एक को हम कहते हैं न्यूक्लियस एंड शेल और ऑर्बिट, और दूसरे को हम कहते हैं शेल और ऑर्बिट। न्यूक्लियस एंड शेल और ऑर्बिट। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, जबकि शेल और ऑर्बिट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अप टिल नाउ मोर देन 100 subatomic particles have been discovered in an atom। आज तक तकरीबन 100 यानी मोर देन 100 से ज्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल जो हैं वो क्या हो चुके हैं, डिस्कवर हो चुके हैं। यानी एटम के अंदर आज तक मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल क्या हो चुके हैं, डिस्कवर हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, हाइड्रोन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो एक्सेट्रा। यानी आज तक हमने यानी फर्स्ट ईयर के लेवल पे हम तो कहते हैं कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है एटम के अंदर, लेकिन आज तक एटम के अंदर 100 से ज्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल क्या हो चुके हैं, डिस्कवर हो चुके हैं। We can see atoms with the help of electron microscope। हम एटम्स को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं।
A man breathed approximately 10 raised to the power 5 million atoms in a deep breath. जब एक आदमी एक लंबी सांस ले तो वो तकरीबन 10 की ताकत 5 मिलियन एटम्स जो है वो क्या कर सकता है, यानी इनहेल करता है. If atoms are joined together in a line, अगर एटम को हम एक लाइन में क्या करें, ज्वाइन करें, यानी अगर एटम को एक लाइन में ज्वाइन कर दें तो 2 मिलियन एटम्स कैन कवर अ फुल स्टॉप. तो एक फुल स्टॉप जो है वो उस यानी 2 मिलियन एटम क्या कर सकता है, उसको कवर सकता है. यानी एक फुल स्टॉप पर 2 मिलियन एटम्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं. The mass of atom ranges from 10 raised to the power minus 27 to 10 raised to the power minus 25 किलोग्राम. मास ऑफ एटम जो है वो 10 की ताकत माइनस 27 से लेकर 10 की ताकत माइनस 25 किलोग्राम है. Atomic number. What is atomic number? We can define atomic number as the number of electron or proton in a neutral atom is called atomic number. किसी न्यूट्रल एटम के अंदर प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की तादाद को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं. रिप्रेजेंटेशन, हम एटॉमिक नंबर को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं. एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय Z. एटॉमिक नंबर को हम किस चीज से जाहिर करते हैं, Z से जाहिर करते हैं. यहां पर देखें, यहां हमने दरमियान में X लिखा हुआ है, नीचे Z लिखा हुआ है और ऊपर जो है वो A लिखा हुआ है. Where X represent symbol of element. ये X जो है ये क्या शो करता है, ये symbol of element शो करता है. A जो है ये मास ऑफ मास नंबर शो करता है. A जो है ये क्या शो करता है, मास नंबर शो करता है. और Z जो है Z एटॉमिक नंबर शो करता है. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन. सो हाइड्रोजन यानी ये हाइड्रोजन H जो है ये क्या है, सिंबल ऑफ एलिमेंट है. और यहाँ पे हमने सिर्फ एटॉमिक नंबर शो किया है, मास नंबर शो नहीं किया है. सो 1 जो है ये क्या है, ये इसका एटॉमिक नंबर है. इसी तरह हेलियम का ये 2 जो है ये एटॉमिक नंबर है. लिथियम का ये 3 जो है ये क्या है, इसका एटॉमिक नंबर है. इसी तरह बेरियम का ये बेरिलियम का ये 4 जो है ये क्या है, इसका एटॉमिक नंबर है. बोरान का एटॉमिक नंबर क्या है, 5 है. कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 7 है. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8 है. फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है क्या है, 9 है. और नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या है, 10 है. सो एटॉमिक नंबर को हम नीचे लिखते हैं, यानी ये सिंबल दरमियान में लिखते हैं. एटॉमिक नंबर जो है वो हम लेफ्ट साइड में नीचे लिखते हैं और ये जो एटॉमिक मास नंबर जो है वो राइट साइड में हम ऊपर लिखते हैं. मास नंबर. नाउ व्हाट इज मास नंबर? वी कैन डिफाइन मास नंबर एज the sum of number of protons and neutrons in an atom is called mass number. किसी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम क्या कहते हैं, मास नंबर कहते हैं. यानी एटम के अंदर जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या करें, जमा करें, यानी इसका सम ले. देखिए मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मास नंबर कहते हैं. रिप्रेजेंटेशन इसको यानी मास नंबर को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं. मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए. मास नंबर को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया कि ये X जो है
یہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ یہ سمبل آف ایلیمنٹ کو ظاہر کرتا ہے. Z جو ہے یہ ایٹامک نمبر کو ظاہر کرتا ہے اور A جو ہے یہ ماس نمبر کو ظاہر کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہائیڈروجن، یہاں پر یہ اس کا جو ہے ایٹامک نمبر ہے اور یہ اس کا کیا ہے؟ ماس نمبر ہے. اسی طرح اس ہائیڈروجن میں یہ 1 اس کا ایٹامک نمبر ہے اور 2 جو ہے یہ اس کا ماس نمبر ہے. اسی ہائیڈروجن میں یہ 1 جو ہے ایٹامک نمبر ہے اور 3 جو ہے یہ کیا ہے؟ اس کا ماس نمبر ہے. یہاں پر اگر ہم دیکھیں آکسیجن میں تو یہ آکسیجن کا 8 جو ہے یہ ایٹامک نمبر ہے اور 16 جو ہے یہ اس کا ماس نمبر ہے. اسی طرح یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہ اس کا ماس نمبر ہے. یہ کیا ہے؟ ماس نمبر ہے. کاربن میں اگر آ جائے تو کاربن یعنی یہ جو اوپر ہم نے لکھا ہوا ہے رائٹ سائڈ پر، یہ اس کا کیا شو کرتا ہے؟ ماس نمبر شو کرتا ہے. ایٹامک ماس. what is atomic mass? atomic mass کیا ہوتی ہے؟ it is the mass of single atom which is the sum of mass of neutron, proton and electron. یعنی ایٹامک ماس جو ہے یہ سنگل ایٹم کے ماس کو ہم ایٹامک ماس کہتے ہیں اور یہ کس چیز سے بنا ہوا ہوتا ہے؟ مطلب ایٹامک ماس جو ہے اس میں نیوٹران، پروٹان اور الیکٹران تینوں کا ماس کیا ہوتا ہے؟ انکلوڈ ہوتا ہے. یعنی ایٹامک ماس از equal to mass of electron plus mass of neutron plus mass of proton. Atomic weight. what is atomic weight? we can define atomic weight as it is average weight of an element or atom with respect to all its isotopes and their abundance. یعنی atomic weight جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ average weight ہے. کس چیز کا ایوریج ویٹ ہے؟ یعنی آئسوٹوپس آف ایلیمنٹس کا، یعنی آئسوٹوپس آف ایلیمنٹ یعنی ایلیمنٹ کے جتنے بھی آئسوٹوپس ہوتے ہیں اس کو ہم یعنی اس کی ایٹامک ویٹ کو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو یعنی جتنی بھی ہوتے ہیں اس پر اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں، مطلب اس کی ایوریج نکالتے ہیں اور اس کی ایبنڈنس کو اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ملٹیپلائی کرتے ہیں. نوٹ: atomic mass or atomic weight is same thing if an element has one isotope. اگر کسی ایلیمنٹ کا ایک آئسوٹوپ ہو تو اس کی ایٹامک ماس اور ایٹامک ویٹ جو ہے وہ کیا ہوتی ہیں؟ وہ سیم ہوتی ہیں. But if an element has more than one isotope then atomic mass and atomic weight is different. لیکن جب ایک ایلیمنٹ کے ایک سے زیادہ آئسوٹوپ ہوتی ہیں تو اس کی ایٹامک ماس اور ایٹامک ویٹ جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ وہ مختلف ہوتی ہیں. Relative atomic mass. what is relative atomic mass? relative atomic mass کیا ہوتی ہے؟ we can define relative atomic mass as the mass of one atom of an element compared with the mass of an atom of carbon 12 is called relative atomic mass. relative atomic mass جو ہے یہ یعنی اگر ہم کسی ایلیمنٹ کے ایک ایٹم کو لے لیں ایک طرف اور دوسری طرف ہم کاربن 12 کے ایک ایٹم کو لیں اور ان دونوں کے ماس کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیا کریں؟ کمپیئر کریں تو اس کو ہم پھر کیا کہتے ہیں؟ ریلیٹیو ایٹامک ماس کہتے ہیں. یعنی ماس آف ون ایٹم آف این ایلیمنٹ یعنی کسی بھی ایلیمنٹ کے ایٹم کو جب آپ لے لیں اور دوسری سائڈ پر کاربن 12 کے ایک ایٹم کو لے لیں، جب ان دونوں کے ماس کو جب آپ کمپیئر کرو گے تو اس ماس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ریلیٹیو ایٹامک ماس. ریزن فار ریلیٹیو ایٹامک ماس. ریلیٹیو ایٹامک ماس جو ہے یہ ہم کیوں معلوم کرتے ہیں یا کیوں لیتے ہیں؟ The masses of atoms are very small and range from 10 raised to the power minus 24 to 10 raised to the power minus 22 gram. Masses of atoms جو ہیں یہ بہت کیا ہوتی ہیں؟ small ہوتی ہیں، جو کہ
10 की ताकत माइनस 24 से लेकर 10 की ताकत माइनस 22 ग्राम है। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर सच स्मॉल मासेस बाय एनी सेंसिटिव बैलेंसर। यानी ये एटम्स की जो मासेस हैं ये बहुत कम होती हैं और इसको हम इंतहाई सेंसिटिव बैलेंस से भी मालूम नहीं कर सकते। Therefore, we compare masses of atoms with an atom of carbon 12 or carbon scale। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि मुख्तलिफ एलिमेंट के एटम्स को हम कार्बन 12 के एक एटम के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। On the basis of carbon 12, relative atomic mass of carbon is 12। कार्बन 12 के बुनियाद पर हमारे पास कार्बन की जो रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो क्या है, वो 12 है। इट इज एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट। इसको हम एटॉमिक मास यूनिट में क्या करते हैं, जाहिर करते हैं। अच्छा, कार्बन यहाँ पर जो हम कार्बन यूज करते हैं यानी कार्बन 12 यूज करते हैं, कोई और एलिमेंट क्यों यूज नहीं करते हैं? सो वी यूज कार्बन 12 फॉर कंपैरिजन because of its stability and abundance। कार्बन 12 को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं यानी कंपैरिजन के लिए कार्बन 12 को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि कार्बन 12 आइसोटोप जो है वो स्टेबल है और ज्यादा मिकदार में क्या है, मौजूद है। यहां पर हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं जिसकी क्या हमने दी है, रिलेटिव एटॉमिक मास। यानी अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, 1.008 AMU। यानी यहां पर हम क्या लिखेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास के साथ, AMU। इसी तरह कार्बन 12 का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो क्या है, वो 12 है। ऑक्सीजन 16 का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो कितना है, वो 15.9994। इसी तरह कॉपर 36 का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो क्या है, 36.546 AMU। यानी यहाँ पर हमने AMU लिखा है। सो ये सब के लिए क्या होता है, आता है। इसी तरह नियॉन के लिए यानी नियॉन 20 का रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो कितना है, 20.1797। और इसी तरह यूरेनियम 235 का रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो है 238.0289। एटॉमिक मास यूनिट, व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट? एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है? वी कैन डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट एज 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 is called 1 AMU। यानी यहाँ पर हमने AMU का जो है लफ्ज यूज किया है। सो एटॉमिक मास यूनिट, AMU का क्या मतलब है, एटॉमिक मास यूनिट। सो एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, कार्बन 12 के 12वें हिस्से को हम क्या कहते हैं, 1 AMU। 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड 1 AMU। यानी कार्बन 12 के 12वें हिस्से को हम क्या कहते हैं, 1 AMU। और 1 AMU जो है वो किस चीज के बराबर है, 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 multiple 10 raised to the power minus 24 ग्राम और 1.67 multiple 10 raised to the power minus 27 kilogram। Thanks for your attention. Next topic of the discussion will be stoichiometry part 2.